So every day we are learning three new techniques. तो एक हमारा हस्त पंच नवा शुद्धि तो सेम ही है. Every day we are learning how to rotate our energy. Then the second step is, after the rotation has started, then the negative energy or the unwanted energy, the trapped energy or the heavy energy which is there inside, पहले उसको हिलाना पड़ता है. वो movement आने के बाद में then we have to push it further. हमें निकालना है. We have to release it. Then after once we have released it, then we are filling it with the cosmic energy. तो हम directly cosmic energy क्यों नहीं? Why are we not filling it? We are not filling it because we need space. जब space कब होगा? When the unwanted things we will remove, then there is a space that gets created, and with that new space created, that cosmic energy fills in, and that good energy is what starts radiating in your life. Okay. So yesterday, some of my students called me and told me कि ma'am, मैंने जब से since the time I've started, I'm feeling very light. I'm feeling very nice about my own being. So is it somebody else that you're feeling that experience in your body कि वो heaviness जो है वो धीरे धीरे आपको लग रहा है कम हो रहा है करके? Is it किसी और को शेयर करना है अपनी जर्नी in terms of, are you feeling it like the day you started to now? Are you feeling that? Or if you're not feeling, it's okay. हम 7 days के बाद we'll monitor. Okay? ठीक है, चलो. तो we'll move forward. आज का हमारा class is on the day 4, and day 4 we will understand how those words energy, where exactly, in which location are we putting it. हमने हमारे चक्रस देख लिए. चक्रस क्या स्टैंड करते हैं वो देख लेंगे. एक बार वापस से रिफ्रेश करेंगे हम, and then we will go forward. Okay. So today towards हमारा आज का मेडिटेशन से पहले, हम सबसे पहले I want to ask you, what happens to you when you listen to a motivational speaker? क्या होता है जब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो? You can please write or unmute whatever way is comfortable with you. What happens to you when you listen to a motivational speaker? आपको कुछ तो होता है आपके अंदर. आप बड़े इंस्पायर्ड होते हो या आपको लगता है नॉर्मल है Yes, क्या? राइट. यू फील, inspired होते हैं. या यू गेट इंस्पायर्ड. व्हाई डू यू Yes. गेट इंस्पायर्ड? We get inspiration with the motivation talks by the motivation speaker. या बट व्हाई? I feel so due to some of the hormones or whatever you're saying, the happy hormones get motivated when you listen to it, and you get confidence, more confidence. And we feel throughout the day we are so happy, and we remember the motivation speech and we work on it very well. Yeah. like that. So what exactly happens when you listen to a motivational speaker is the motivational speaker की खुद की एक एनर्जी होती है, राइट? वो खुद की एनर्जी से बहुत जोश से बोल रहा होता है. वी फील अमेजिंगली गुड लिसनिंग टू हिम. प्लस ही यूज सर्टेन वर्ड्स. उसके कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो बहुत हमें अच्छे लगते हैं. वो वर्ड्स हम सुनते हो, हम बोलते यस, इवन आई कैन डू इट. और उसकी एनर्जी एंड उसकी वर्ड्स की एनर्जी से हम अपने अंदर, हमारे में वाइब्रेशन होता है और हमें लगता है यस आई कैन डू इट, मैंने भी करना है, इवन आई विल डू ऑल दिस थिंग्स. सो वी आर फुल्ली पम्प्ड अप, वी आर फुल्ली एनर्जाइज्ड. हमारी पूरी एनर्जी एनर्जाइज्ड हो जाती है और फिर हम घर पे आ जाते हैं. एक दिन तक आज मैं जाऊंगी, सुबह वॉक करूंगी, मैं ये करूंगी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. आफ्टर 2 days यू आर अगेन, छोड़ना, बाद में जाएंगे, आई डोंट थिंक सो आई शुड डू इट. So again you fall into a different trap. Why? Because now again you're operating from your energy. You're understanding your energy is here and then you're going there. आपने वो high energy देखी, आपको amazing लगा, you got charged. But then that will stay for some time. Even on YouTube, आपने कोई motivational video देख लिया, you will get inspired for that particular moment, for some time, for some duration. And after that, again, you will seep down into your again.
Why does it happen? Because ultimately हमारी एनर्जी हम जितना प्यूरिफाई करेंगे हम उतनी हाई एनर्जी में जाने लगेंगे, like the motivational speaker. Okay, now you have got a pass to a music concert and you want to go, and you have two friends. Okay, your one friend who is full time crib करता रहता है, he is always crying, रोता ही रहता है पूरे time. Okay, and there is another friend of yours who is full of joy, हंसता रहता है, full, like, you know, full sorted. So which friend would you choose to hang out with? Which friend? बहुत obvious सा आंसर है इसका. That second person, the person who is with full of joy, right? You will say, अरे मैं ए वाले फ्रेंड को लेके जाऊँ तो रोता ही रहता है, वो उसमें भी पता नहीं कुछ नुक्स निकाल देगा, right? That means what again? वो वाला जो आपका फ्रेंड है उसकी एनर्जी लो है, और जो क्रिब कर रहा है या रोता रहता है, तो वो लो एनर्जी जब आप कांटेक्ट में आते हो, कहीं ना कहीं यू फील अ डिफरेंट वाइब्रेशन and you don't feel comfortable, so then your body is already telling you, but आप नहीं जान रहे हो कि ये energetically भी आपको affect किए जा रहा है. Okay, and then you will hang out with people. So there is a kahavat, I'm sure everybody, you must have heard that just observe your friends, your friend circle, be wise with the friend circle that you have. You will become what they are. Why? Because that is the energy you're radiating, that is the words that is being radiated, that is the knowledge that is being radiated. वो जैसे होंगे वैसे ही आप हो जाओगे. So it is a fact that energy speaks, and energy speaks in many forms, like in a thought form, in the words form, in the energy that you're radiating, right? So हमारे जो chakras है, our chakras are 7 chakras and the organs. Okay, so Mooladhara, which is the lowest root chakra, is the all about the kidney, spine and the testes. Okay, जो हमारा lower zone का हमारा chakra, where it is on the backbone के end में, on the tip. Okay, the backbone के tip में है, in the end, and it is in between your urinary tract and the anus के बीच में ये जगह. Okay, now second is the swadhisthana, that is called the sacral chakra. Sacral chakra is the bladder, the ovaries, the kidneys, the gallbladder, bowel and the spleen. Entire all these organs are connected with your swadhisthana chakra. मतलब कि सेक्रेल चक्र अगर वो ठीक चल रहा है, अगर वो दैट इज वर्किंग इन परफेक्ट स्टेट, तो एनर्जी टू ऑल दिस ऑर्गन्स इज कमिंग इन परफेक्ट स्टेट. ओके, सो नाउ कमिंग टू सोलार प्लेक्सस. सो सोलार प्लेक्सस से आपका इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर, ब्लैडर, स्टमक एंड अपर स्पाइन, ये पूरा का पूरा आपके सोलार प्लेक्सस से कनेक्टेड है. Then is the heart chakra. Heart chakra is all about heart and lungs. Vishuddhi is bronchitis tubes, vocal cords, your listening ability, your respiratory system, or mouth, including tongue, is all connected to your throat. Okay. Ajna, the third eye, the organs connected is the eyes, the pituitary gland, and the brain. Now crown chakra is the spinal cord and the brain system. All the nervous system and everything is connected from the crown chakra. Okay. So now again going, तो जैसे मैंने बताया, every chakra is there. Every chakra's energy is connected to different organs, and that is how it is working in our body. Okay. It is associated with the endocrine glands also. Okay. So कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी, दी चक्रास विच इज ऑन दी एस्ट्रल ट्यूब्स, it is connected to the body, and this chakras which is moving in a healthy state is giving energy to this different organs. Okay, and with this energy that it is giving to different organs, it is radiating that perfect health.
जब वो अपने स्टेट में या परफेक्ट, अगर वो क्लीन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल वो ब्लॉक्ड है, so if for example my solar plexus, for example let's take कि वो blocked है and it is not rotating the way it should be, that means the pran flow of energy is not happening to that level, so the solar plexus will not give energy to the different organs to that, because ये फ्लो ही नहीं कर रहा, ये एस्ट्रल ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो गई है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें अटकाई हुई है. Now, in the next slide, we will understand which emotion or which things we have kept in which chakras. Okay. So, this is solar plexus. Mein I have dumped lot of things. Now, my solar plexus is not working properly. So, it will not give energy to my different organs. Now, the different organs, because it is not working, वो physical plane में manifest हो जाएगा. Physical plane में dis-ease, disharmony, वो मैनिफेस्ट हो जाए. नाउ टू मेक इट ऑल राइट, वी विल गो टू द डॉक्टर, वील हैव मेडिसिन. ओके, मेडिसिन तो कई बार हमें खानी पड़ती है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, बट मेडिसिन से ये ठीक हो गया है, मगर वो ग्रास रूट लेवल से ठीक नहीं हुआ है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इवन क्लीन दी एनर्जेटिक बॉडी. एनर्जेटिक बॉडी आपको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट क्लीन, अगेन समथिंग और दी अदर विल हैपन. आपका ये ऑर्गन का ठीक हो गया, तो देन इट विल गो टू समवेयर एल्स, सो इट विल कीप ऑन हैपनिंग. सो व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल in our body there is a weak spot. Okay, for example, let's take solar plexus example only. If something is not right, the energetically my solar plexus is not operating rightly. So जो भी weak spot होगा, there is where the dumping will start happening of the blocked energy, and then blocked energy will keep on happening there, and then the proper function of that organ won't happen, and that is how then one leading to another and so on and so forth. Okay. So going towards the slide again. तो now our, जैसे मैंने बोला था, हमारा एक ईडा है और एक पिंगला है, राइट. एक हॉट है और एक कूल है. तो जो हमारे लोअर 3 चक्रास होते हैं, दैट इज दी हॉटर वंस, एंड कूलर वंस इज दी मतलब ग्रीन वाला जो हार्ट है, दैट इज कम्स इनटू बैलेंस एंड देन बिकम्स दी कूलर वंस. ओके, ऑन द टॉप. Now, no, the majority, 90% of the world's population's energy zone is coming out of the lower 3 chakras. It is coming out from lower 3 chakras. Now, how can I say this? तो हमारी बॉडी ने एनर्जी मैन्युफैक्चर किया. सो वी आर लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. हमने खाया, हमने ब्रीथ किया, हमने एनर्जी क्रिएट करी, and now we need to spend. So where we will spend, it will go out from your lower 3 chakras. तो खाना पीना सेक्स रिपीट, दैट इज द जर्नी. वही हम करते, वही वाले साइकिल में इज व्हाट वी आर डूइंग. So now all our excreta is happening down, the sex में it's down, so that energy is going down. Now what do the spiritual science says? If you are able to harness this energy which is going out from there, and you harness it and you take it up, then your energy will go up. So what is so that is how they take their spiritual energy up, and they merge it in their heart, and heart से लेते हुए और ऊपर 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 लेके crown चक्र तक they take it. Okay, so we will understand आज how and which part of the organ are we dumping what. उसके पहले वापस से चक्र चार्ट देखेंगे. That red. Now somebody asked me, how will I understand from which organ I have to release what? So from the root chakra, any instability in your life, in your workplace, insecurity and instability, you throw out from your root chakra. Okay, तो आपका रूट चक्र स्टैंड्स फॉर सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ. तो इफ यू आर फीलिंग अनसेफ एंड आपको स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है इनसिक्योरिटी और मनी इश्यूज है, वो सब आपका रूट चक्र, मतलब एनी इम्बैलेंस
in your life, in your personal life or your workplace is related to your root chakra. Okay. Now, the sacral chakra is all about creativity, teamwork, and connection. So, anything that is related to or not being creative or you're not flowing in your life, आपने flow ही बंद कर दिया है अपने life में, so that is all sacral chakra. Now, solar plexus is all about confidence, self-esteem. That means if if you feel lack of power in your body, if you feel, oh, I don't think so, I can do it, I don't have that much of strength. So that is all your solar plexus. Solar plexus is like sun की energy है वो. तो अगर वो एनर्जी आप में कम है तो यू विल बी मेनी टाइम्स यू विल लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट. ओके. नाउ ग्रीन या हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, लव, कंपैशन. ओके. अगर आपको लैक ऑफ कंपैशन फील हो रहा है, आपको हर्ट हुआ है, किसी ने आपको बहुत बुरी चीजें बोली हुई है, आपको पेन महसूस होता है बिकॉज ऑफ ओल्ड इंसिडेंट्स, all that garbage you have dumped in your heart and you have blocked your heart, and it happens with everybody. So it's not कि मेरे साथ ज्यादा हो रहा है मैम, दूसरों के साथ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है, सबके साथ सेम ही हो रहा है. ओके. नाउ थ्रोट चक्र is all about communication. If you had lot of things to say and you are not saying and you are keeping it inside you, आपने अंदर अंदर डंप किया हुआ है, दबाया हुआ है अपने आप को, तो your throat chakra will get blocked. Trust me, it really happens. आपका thyroid glands will start functioning in a very different manner. देन थर्ड आई, प्लानिंग, गोल सेटिंग. आपको इंट्यूशन बहुत क्लियर होगा. अगर आपका थर्ड आई ब्लॉक है, दैट मीन्स आपको इंट्यूशन नहीं होगा, आप कंफ्यूज रहोगे, एट टाइम्स फॉगी परसेप्शन होगा. ऑल दिस यू विल एक्सपीरियंस इन योर थर्ड आई. Now the crown chakra, if you are connected with the higher vision, if you are connected with the divinity, तो यू विल बी, आपका क्राउन चक्र इज सॉर्टेड. अगर वो नहीं है, दैट मीन्स यू विल बी एंग्री ऑन द डिवाइन. यू विल फील क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है. यू विल लाइक लिटरली हैव अ disconnection between the higher self and yourself. Okay. So now going forwards to the slide, where all are we dumping the different energies. Okay. So all the burden, all the responsibility that you take, कि मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैं मैनेज करने वाली हूँ, और जो बर्डन हो जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन हम ले लेते हैं अपने क्षमता की बियॉन्ड, वो सारा बर्डन आप अपने शोल्डर पे डंप करते हो. सो इफ यू हैव पेन इन योर शोल्डर एरिया, दैट मीन्स यू हैव टेकन एक्स्ट्रा बर्डन that is actually like creating that pain and discomfort in that area. Okay. So creating this heavy load आपने लिया हुआ है. Now the throat chakra, जिसे मैंने बताया, lack of trust, आप लोगों को trust नहीं करते हो, inability to speak your feelings, lack of nurturing, ये आपका throat area में आपने dump किया. Heart area में anything that has happened in the past, लैक ऑफ लव मिला, ग्रीफ हुआ, सॉरो हुआ, सैडनेस हुआ, एम्प्टीनेस हुआ, अलोनलेस हुआ, डिसइल्यूजन हुआ. नाउ इमेजिन कितनी सारी चीजें हमारे जीवन में होती है, हम ये एनर्जेटिक बॉडी, एथरिक बॉडी में हम डाल रहे हैं, एंड वी डोंट इवन, वी आर नॉट अवेयर ऑल्सो. ह्यूमिलिएशन हुआ, शेम हुआ, एम्बेरसमेंट हुआ, ये सारी चीजें, किसी ने, somebody was very cruel with you, mean with you. Now all that memory you have stored in this area. Now the fear area, आपने loss of control, fear of losing out, fear of losing control, fear कि मेरे पास power ही नहीं है and I'm giving power to somebody else. Okay. So it is below the chest where you're dumping. Anger area,
is on the right hand side where you are dumping it. आपका पूरा लिवर जो है, पूरा पूरा वो रेज जो है आपकी लिवर में बहुत बुरी तरह से आप उसमें डंप करने लगते हो. लिवर मीन्स लिवर पे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो आप एनर्जेटिक बॉडी में डाल रहे हो जो कि वो आपको अफेक्ट करेगा उसका प्रॉपर फंक्शनिंग में. जेलेसी हो गया, रिसेंटमेंट हो गया, वो सब आपने उधर डाला. ओके, नाउ गिल्ट, शेम एंड अनवर्दीनेस ऑन द लेफ्ट साइड, अनएक्सेप्टेंस, सेल्फ जजमेंट जो कि हमारा कभी खत्म ही नहीं होता, हम खुद को ही जज करते रहते पता नहीं किस खुशी में, बट वी डू दैट. ओके, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं. ओके, देन इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड रिसीव इज ऑल ऑन द लेफ्ट साइड. देन ओल्ड स्टफ सेंटर, जो आपका सेक्रल चक्र है, सेक्रल चक्र में ऑल चाइल्डहुड कंडीशनिंग वायोलेशन, अगर कुछ बाय मिस्टेक हुआ है तो समथिंग जो मतलब मोलेस्टेशन या अब्यूज या रिजिडिटी, ये सारी सारे हमारे सेक्रल चक्रस में हम उधर डंप करते हैं. लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट आपके राइट हैंड साइड में लोअर जोन पे आपके रूट चक्र के बाजू में है. ओके, राइट हैंड साइड इज द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. रिजेक्शन सेंटर, नाउ द लास्ट इज अ रूट चक्र, सर्वाइवल सेंटर. हमारा सर्वाइवल सेंटर, फीलिंग दैट वी वोंट सर्वाइव, लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ, वायोलेशन हुआ है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, और फिजिटी, देन क्रिएटिविटी हमारी अटकी हुई है करके. सो रिजेक्शन सेंटर इज ऑल एब्डोमेन, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, सेल्फ रिजेक्शन, एब्डोमेन ऑफ द. तो बेसिकली कहानी का मतलब ये है कि ये सारे इमोशंस हम फील करते हैं इन द एंटायर डे, राइट, इन द एंटायर डे एंड एंटायर लाइफ. वी आर नॉट अवेयर बट वी आर डंपिंग, वी आर डंपिंग, वी आर डंपिंग. तो उसको जब आप उसको निकालोगे नहीं, उसको रिलीज नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली नहीं जाने वाले. सो वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस में तो है ही, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में भी है, और उसके अलावा ऊपर से आपकी जो सेल्स है वो सेल्स में अंदर 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 जा चुके हैं. तो जब तक आप उसको पुश करके बाहर नहीं निकालोगे वो नहीं जाने वाले. उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है. एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैंने इतना प्रोसेस, इतना काम करा है, सो आई एम एबल टू टेल यू. आप रोज जो ये मैं रोज टेक्निक्स बता रही हूँ, इसमें से आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, पिकअप दैट एंड कीप ऑन डूइंग इट. रोज करो, रोज करो, रोज करो. इवन रोज नहीं टाइम मिल रहा है, 5 मिनट्स में करो. एनर्जी रोटेशन करना है, निकालना है, और निकाल के अच्छी एनर्जी भर लेनी. दैट इज इट. और आपको खाली ये छोटा सा प्रोसेस है, आप करते जाओ, आप खुद आपकी एनर्जी लेवल आप महसूस करोगे बहुत चेंज होगी. सो नाउ अगेन गोइंग टुवर्ड्स अ स्लाइड. तो नाउ इसको थोड़ा और डिटेल में, डेप्थ में मैं आपको समझाना चाह रही थी. तो राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. ओके, राइट साइड इज द मैस्कुलिन साइड, द सुषुम्ना नाड़ी, एंड इज द ईडा नाड़ी इज द लेफ्ट साइड. ओके, तो राइट साइड इज अ डूइंग एंड बिलीफ, है ना, हमें एनर्जी चाहिए होती काम करने के लिए आगे. डूइंग एंड बिलीफ इज मोर डोमिनेंट देयर. एंड लेफ्ट साइड इज रिसीविंग एंड ट्रस्ट के ऊपर. ओके, तो हमारे 7 चक्रस है, पहले मैं नीचे से फिर ऊपर आ रही हूँ. ओके, तो पहले लेट अस गो डाउन. हमारे अभी पाँव से लेके ऊपर तक, शरीर तक. नाउ इमेजिन. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड लाइफ एंड अदर्स आपके नीचे की तरफ, इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड डीलिंग विद लाइफ इश्यूज. फर्स्ट चक्र जो है पूरी तरह अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी. ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ब्रेकिंग डाउन आइडियाज. और अगर आपके अंदर ईगो है, प्राइड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके नी में जाके वो डिपॉजिट होता है, ईगो. एंड देन योर नी पेन्स. फिर हमें लगता है अरे हमारा नी क्यों पेन हो रहा है, हमने वो एनर्जी वहां पे डंप करी हुई है, एंड दैट इज व्हाट इट इज मैनिफेस्टिंग. तो वो आपको वहां पे ना, ईगो क्या है बेसिकली,
ईगो क्या है? ईगो इज अ फीलिंग which you are feeling, right? हाँ संगीता, it is fine. Okay. तो नाउ ईगो क्या कुछ एक चीज है हमारे अंदर? नहीं, राइट? बट ईगो तो इट्स लाइक कहीं भी होता है तो हमें लगता है नो, आई कैन नॉट. या somebody wants to explain? Okay. So what is ego? Ego is an air element. ईगो एक अहंकार इज एन एयर एलिमेंट, राइट? मतलब वो हवा में ही तो हम उड़ते हैं. वी आर फ्लोटिंग इन एयर. और वो एयर एलिमेंट लाइक अ वात, वो इट गोज एंड गेट स्टक इनटू योर नी एंड देन वी फील डिफरेंट. सो व्हेन वी गेट ईगो, ज्यादा ईगो जिनके साथ होता है, उनकी ब्रीदिंग स्टाइल भी एक डिफरेंट तरीके की होती है. इट इज टू दैट उतने लेवल तक, माइन्यूट लेवल तक अफेक्ट करता है वो. तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ईगो इज ऑल डिपॉजिटेड इन योर नी एंड वो पेन होता है. नाउ ग्रेजुअली जब आप एनर्जेटिकली क्लीन करोगे तो वो सॉर्ट आउट होने लगे. ओके. नाउ जेनिटल्स, जैसे क्रिएटिव फियर ऑफ योर ओन वर्थ, femininity and the masculinity, details of life, handling life's experience, ability to let go of the past, fighting against what's everything within us. ये सारे हमारे सेक्रियल चक्रों में स्टोर होते. हमारा सोलार प्लेक्सिस इज विक्टिज्म, जो हम फील करते हैं कि तो वो हम लिवर में डालते हैं. पावरलेसनेस, अगर हमें सन की एनर्जी हमारे अंदर नहीं है. किडनी इज होल्डिंग ऑल द इमोशंस एंड शेम. गैल ब्लैडर इज होल्डिंग द रेज. तो स्टमक इज होल्डिंग द डाइजेशन आइडियाज टू बिगिन. तो जब हम सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम उसकी आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें डाइजेशन इश्यूज होते हैं बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट टू डाइजेस्ट दोज इश्यूज. and that is when we start having the gut and so on. Okay. So yes, you can use the glass bowl and the steel for releasing the negative energy. Okay. So now this हमने अभी लोअर चक्रस के देखे, अभी हम ऊपर के बॉडी का देखेंगे. So now for the green, the heart chakra, कि feeling unprotected, हमारा diaphragms is feeling unprotected. Heart is ability to receive and give love, intimacy. तो हार्ट में क्या होता है बेसिकली? किसी ने आपको बहुत बुरी चीजें बोली है, ओके, आपने वहीं पे डंप किया है. किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपने बड़े प्यार से अपने मन से आपने करा, मगर आपको पता नहीं था कि सामने वाला वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, और आपका हार्ट, आपका दिल टूट गया कि अरे मैंने तो इतने श्रद्धा से करा, नहीं हुआ. तो उसके वजह से वो तो हमने एक्सपेक्टेशन क्रिएट करी थी, और हम अननोइंगली वो एनर्जी हमारे वो वाले सेंटर पे हम डंप कर रहे हैं. देन थ्रोट में रिप्रेस्ड वर्ड्स हो गए, हमारे ओपिनियन एंड इमोशंस हो गए, फिर ह्यूमिलेशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, इनफ्लेक्सिबिलिटी, वो सारी चीजें. फिर हमने थर्ड आई, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंट्रोल करता है नोज में सेल्फ रिकग्निशन एंड सेल्फ वर्थ. ईयर्स कैपेसिटी टू हियर. पीनियल ग्लैंड पर्पस ऑफ लाइफ. सेवन चक्र रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ लाइफ. और सेक्सुअल फियर्स, ओवर थिंकिंग, रिफ्यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर रेस्ट चक्र, एंड ओवर थिंकिंग एंड स्टबर्न. तो अभी आपने पूरा चार्ट देखा, यू अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स हैपेंड, एंड हमने ही, नोबडी एल्स, कोई और नहीं कर रहा, ये हम अपने आप अपनी वो एनर्जी वहां पे हम क्लॉक कर रहे हैं, हम उधर हम डाल रहे, एनर्जेटिक बॉडी में हम डाल रहे. तो जब हम एनर्जेटिक बॉडी को हम क्लीन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी विल स्टार्ट, and the flow of energy will open up a new channel in your being. Okay. So now let me come to again and then let you know the again. So naturopathy mein there are some therapies which are done and which works amazingly well
so I wanted to share with all of you. तो सबसे एक थेरेपी होता है जिसको बोला जाता है बनाना लीफ बाथ थेरेपी। उसमें क्या किया जाता है कि आपको लाइक यू आर ओनली इन योर अंडरगारमेंट्स एंड आपको धूप के नीचे लेटाया जाता है। बनाना लीफ जो है वो आपके ऊपर लगाया जाता है और आपको लेटाया जाता है। So now each and every pore, now imagine sun rays are coming onto your body, banana leaf के वाया वो आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, तो आपके सारे पोर्स खोलता है और ईच एंड एवरी पोर से जो हमारे ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी है, चैनल्स, मतलब हमारा एवरी पोर हैज टू ओपन अप, राइट। तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी पूरे पसीने में, खाली आप 10 मिनट्स में वो पसीने में हो जाते हो और वो आप ओपन अप हो जाते हो एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग विद योर गुड एनर्जी। ओके, नाउ अदर थेरेपी, देयर इज अ सैंड बाथ थेरेपी विच दे डू, जो आप सैंड में आपको अंदर लेटा देते हैं और उसमें अगेन वो सैंड बाथ में आपको पूरी की पूरी सैंड में आप अंदर रहते हो, तो सन के नीचे आप हो, वो पूरी तरह से आपकी बॉडी की पोर्स को ओपन कर। मड मड बाथ थेरेपी, अगेन मड लगाया जाता है आपके पूरे बॉडी में इंक्लूडिंग सर, और सर पे भी पूरा लगा के द एंटायर बॉडी इज फिल्ड विद मड एंड देन द एंटायर बॉडी के सारे पोर्स, पहले तो वो गीला होता है, ठंडा होता है, फिर ठंडा होते होते देन इट गेट्स क्लो देन जो वो सूख जाता है तो इट इज नाउ बिकमिंग टाइटर, राइट। एंड वो टाइटर से आपकी पूरी एनर्जी सर्कुलेशन जो है वो आपकी बॉडी में होने लगती है। ओके, नाउ द पावर हाउस, एज एवरी डे आई हैव बीन सेइंग, द पावर हाउस ऑफ योर ओन बॉडी इज द गट। अगर आपका गट क्लीन नहीं होगा then your body will feel heavy and stuffy. Okay, so नेचुरोपैथी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला जाता है कि कोलोन थेरेपी और दी एनीमा वो आपको लेना चाहिए, तो आपका बॉडी क्लीन होता है। Now what exactly happens when you take enema and colon therapy is, when you take enema, your entire body, since childhood till now you've been just eating and eating. आपने अपने इंटेस्टाइन को अंदर से कभी साफ ही नहीं करा, वो कभी क्लीन ही नहीं हुआ। तो बिकॉज इट इज नॉट क्लीन inside of our body, there is more than 2.5 kg of bacteria, good bacteria, healthy bacteria and bad bacteria. Okay, हम सबके बॉडी के अंदर। तो what you eat is not you are eating, your bacteria is eating it and it is breaking down and it is going in your body. Okay, now this healthy bacteria, उसको क्या चाहिए, उसको रेशे चाहिए। रेशे मीन्स फाइबर चाहिए। अगर आप एवरीडे फाइबर नहीं खा रहे हो तो आपका पेट ठीक से क्लीन ही नहीं होगा। या आपने खा भी लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने मैदा खाया या आपने पैक्ड फूड्स खाए, so what will happen is it will go to your gut and in the gut lining it will stay somewhere or the other. Okay, it will not go out completely, and because it won't go out completely, then the disease starts manifesting in our body. Now हमें पता नहीं है कि इतना गार्बेज लेके हम अपने बॉडी, so it's just imagine you along with you're carrying that garbage for so many years. तो जब आप कोलोन थेरेपी करते हो तो आपके गट से जो पुराना होता है, एटलीस्ट एट अराउंड यू कैन से, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कोलोन थेरेपी तो एट अराउंड 1 kg और 2 kg वे गार्बेज आपके पेट से निकलता है। तो दैट डे जिस दिन आप कोलोन थेरेपी कराते हो, बिकॉज इट गोज ऑन फॉर 30 मिनट्स, उस दिन आपको थोड़ा सा वीक लगेगा एंड दैट डे यू हैव टू ईट खिचड़ी बिल्कुल पतली सी, बट नेक्स्ट डे यू विल फील सो एनर्जेटिक। यू विल फील, अरे ये एनर्जी मेरे अंदर ही थी, मुझे पता ही नहीं था। सो इन योर प्लेस, इन योर जगह, if you feel colon therapy is too much, then you can please do enema. Enema in any yoga center आपकी इर्द गिर्द होएगा। Please do it. You will see that difference. So every year for 15 days,
I go to a naturopathy camp and I cleanse my entire body out. I do that. मैं अपने पूरे इनर बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करती हूँ. तो एंड यू योरसेल्फ विल फील, जब आप एनिमा कराओगे तो यू विल फील ए डिफरेंट एनर्जेटिक चेंज इन योर बीइंग. ओके, सो going again to the slide. So if you have not done, please do it once in your own place. You can do it. Okay. Now there is other ways also, which is called the hydrotherapy. Okay. Hydrotherapy में क्या किया जाता है? You go to the hydrotherapy and pressure of water आपके ऊपर आ रहा होता है, और वो आपका बैकबोन जो है, जो स्पेशली आपके बैकबोन में पूरी तरह प्रेशर पॉइंट्स में, आई विल शो यू अनदर वन ऑल्सो. सो ये एक स्टीम बाथ जैसा होता है. यू हैव टू गो सिट इनसाइड एंड प्रेशर से पानी आके स्टीम में आपके सारे पोर्स एंड सब कुछ को वो क्लीन करता है. यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेशर से पानी दिया जा रहा है एंड इट ओपन्स अप ऑल योर थिंग. हाथ के लिए इट इज सबमर्ज्ड इन हॉट वाटर, हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी बोला जाता है इसको, via which the energy is rotated. Okay. Now, what exactly happens in that hydro bath is कि उसमें एक ऐसे चैनल होता है जहाँ पे 7 जगह वो प्रेशराइज से पानी आ रहा होता है. एंड व्हेन यू सिट इनसाइड तो आपके ऑल 7 साइड्स में वो प्रेशर में पानी आता है. उससे क्या हो रहा है, आपके जो चक्रस है वहां पे पूरी तरह अच्छी तरह से वो अंदर तक जाते हुए पानी, बिकॉज पानी एब्जॉर्ब करता है, हमारा स्किन वो अंदर लेता है एंड वो उधर से वो क्लीन करता है. ओके, सो नाउ गोइंग, ये तो हमने समझ लिया कि हमें कहीं सेंटर में जाना पड़े, बट घर में क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू एट होम. सो आई विल टीच यू व्हाट इजीली सिंपल तरीके से आप अपने घर पे अपने आप कर सकते. ओके, so this is called the wet towel therapy या wet water therapy, आप जो बोलना चाहो इसको बोल सकते हो. इसमें आपको 3 कपड़े चाहिए. ओके, तो एक कपड़ा आप अपने सिर में बांधोगे, एक कपड़ा अपने नेक में बांधोगे, और एक कपड़ा आपके नेवल इधर है तो नेवल के ऊपर और नीचे. ओके, इसको रोटेट करके आप बांधोगे. ओके, ये वाला जो कपड़ा है आपको अमेज़न में मिल जाएगा. अगर यू डोंट वांट टू बाय, इट्स नॉट नेसेसरी टू बाय. आपका पुराना दुपट्टा होगा, पुरानी साड़ी होगी, कॉटन कपड़ा लेना है, उसको नॉर्मल जो टैप वाटर है उसमें बाल्टी में पानी रखो, ये कपड़े को भिगो और भिगो के निकालो, इसको निचोड़ो, और एक आपको सिर में बांधना है, एक गले में बांधना है, और एक आपको पेट में बांधना. ओके, और ये मतलब नॉर्मल हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, और जो नल में फ्रेश वाटर जो आ रहा है वो ठंडा ही पानी होता है. तो ये आपकी बॉडी से थोड़ा ठंडा पानी है बेसिकली. ओके, और आपने वो बांध दिया, बांध के आप लेट गए, नहीं तो आप अपना काम करते रहे. ओके, घर पे. ओके, व्हाट हैपेंस विद दिस इज कि आपकी जो एनर्जी है बॉडी में अभी वो नॉर्मल फ्लो कर रही है. ओके, जैसे ही वो ठंडा लगेगा तो एकदम से आपको ऐसे फील होगा फॉर जस्ट लाइक 1 मिनट मैक्सिमम. उसके बाद में आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी. नॉर्मल आप अपना काम कर रहे हो फॉर 15 मिनट्स रखना है आपको. ओके, और 15 मिनट्स रखा तो आप जब निकालोगे तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जहाँ पे एनर्जी चाहिए तो एकदम से, बिकॉज वो ठंडा लगा तो द एंटायर ब्लड रशेस टू दैट प्लेस, और वो उधर से वापस से रीजनरेशन ऑफ योर एनर्जी फ्लो, आपका ब्लड फ्लो विल हैपन इन योर बॉडी. सो दिस इज अ सिंपल इजी स्टेप जो आप घर में कर सकते हो फॉर द रोटेशन ऑफ योर बॉडी एनर्जी. ओके, so now going to my next slide, which is the affirmations for the chakras. Okay, तो आप इसका प्लीज फोटो ले सकते हो, नहीं तो आई विल शेयर इन द ग्रुप, वॉट एवर सूट्स यू इज ओके. ओके, तो हमारे सारे चक्रस की कुछ अफर्मेशंस है, और ये अफर्मेशंस बोलने कैसे, इनहेल करते हुए, फील करते हुए ये वर्ड्स को बोलना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं रूट चक्र को बोल के बताऊंगी. ओके, तो मैं इनहेल कर रही हूँ और मैं बोलती जा रही हूँ मन के अंदर,
आई एम सपोर्टेड बाय मदर अर्थ, आई हैव टू फील, मेरे को फील करना है मदर अर्थ मुझे सपोर्ट कर रही है फुल्ली। वो एनर्जेटिक चेंज लाना है। जब एनर्जेटिक चेंज लाओगे तो आपके बॉडी में आपको वो चेंज होगा। देन यू हैव टू से I am deeply rooted to in Mother Earth. Okay, I'm connected to my body. I have everything I need. I trust in the good of the world. मतलब ये मैंने खाली रूट चक्र का बोला। फॉर एग्जाम्पल आप ये अफर्मेशंस बोल रहे हो और बोलते हुए आपको नहीं लग रहा है ऐसे, आपको मन के अंदर नहीं लग रहा है, मतलब आई एम डीपली कनेक्टेड आप बोल रहे हो बट आपको फील नहीं हो रहा है। देन इफ यू फील कनेक्शन नहीं हो रहा है और मेरे अंदर वो शॉर्ट कमिंग फील हो रहा है, तो अपने आप को टैप करना है, टैप करना है, चेंज करनी है अपनी एनर्जी एंड फील करना है, वापस से फील करना है और फील करके ही वो अफर्मेशंस बोलना है। क्योंकि फील करोगे यू आर चेंजिंग द एनर्जी, यू आर नॉट दैट सेम सेल्फ, तो वो चेंज करना है। ओके, so now today we'll go towards our practice. So Vidya is asking, please suggest any naturopathy center in Chennai. In Chennai, I'll check with my friend, but otherwise there is lot of naturopathy centers in India. One is Jindal, which is in Bangalore. One is in Vijayawada, Dr. Manthana, which is very nice. You can explore. It is on the banks of Krishna River. I will send all the links on the WhatsApp. Second, near Mumbai is Nirvana, which is in Igatpuri, and near Faridabad there is one place, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, near Delhi. I will send that detail also. So I have gone in Nirvana Naturopathy, which is in Igatpuri, which is amazing. Okay, I have gone to Vijayawada Naturopathy. Earlier, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, 10 साल पहले I started going. And every year I would go to the Vijayawada's naturopathy. Dr. Raju Manthana is the name. I will share that link. And it is very economical. उसमें आप डिपेंड करते हो आपको कौन सा रूम करना है। अगर आप डबल शेयरिंग या ट्विन शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग भी है उसमें, आप जब when I started going that time for 15 days with food, with all the facilities, was only for 18,000. Then over the time, it became 21,000 for double sharing, and with all the food, all the therapies, everything. इसके ऊपर over and above कोई charge नहीं है. For 15 days I am talking, which is like peanuts. तो दिल्ली के एरिया में है, there is an amazing place. मैं आपको बताऊंगी. माय सिस्टर लॉ हैड गॉन देयर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी. प्लीज एक्सपीरियंस करना. तो हाउ आई स्टार्टेड आई टेल यू. सो 10 years बैक देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैड दिस स्किन में जो व्हाइट पैचेस होते हैं, वो ही हैड दैट स्किन में व्हाइट पैचेस एंड ही यूज्ड टू फील वेरी टायर्ड, बहुत टायर्ड महसूस होता था. So he went, and after 15 days, I see this person, and he's looking like a college kid. He's looking like a college kid. I'm like, what happened to you? I want to know. So he was probably going for many time. He must have gone. And then I asked him what it is. What is that you're doing? I want to understand. So then he told me I go to this place. So Ayurveda is different and naturopathy is different. So Ayurveda believes in treating you with the plant medicine. Okay, balancing your पांच तत्व and some process, some kadas and all, वो आपको लेना है. Naturopathy is believing in balancing this 5 tattva with the nature element with different therapies. तो आयुर्वेदा में मसाज जो होता है वो डीप प्रेशर एंड शिरोधारा, वो वाला सब चीजें होती है. उसमें कुछ मेडिसिन भी मिक्स्ड होती है, मतलब प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है. एंड नेचुरोपैथी में जो ऑयल होता है वो ऑयल दे बिलीव इन क्रिएटिंग अ पॉकेट एंड
दे विल क्लैप। तो वो जो प्रेशर पॉइंट्स है वहां पे वो जाके उनका मसाज टेक्निक अलग होता है। ओके, so when this person started going and started looking like a college kid, so I asked him, so he said okay I am going here। so मैंने सोचा कि चलो let's explore, मुझे भी explore करना है what it is। तो I went for 15 days। तो मैं जब 15 दिन गई, and trust me, 15 दिन के बाद में when I came out, I felt as if I can just fly। मतलब मेरे में इतनी एनर्जी लग रही थी मुझे। और जो स्किन था, जो ये स्किन है, स्किन आफ्टर 15 days was glowing, it was glowing like sun। and then everybody started asking me कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा फेशियल कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रही थी, इट वाज जस्ट मैंने थेरेपीज करी, सारे पोर्स जो है हमारे बॉडी के शरीर के वो ओपन किया, और वो पूरी प्राण एनर्जी हमने ली, और उसी से वो चेंज हो गया करके हमने अपना गट क्लीन करा पूरी तरह। सो बेसिकली नेचुरोपैथी में दे आर मेकिंग योर बॉडी एल्कलाइन, अदरवाइज इट इज एसिडिक, बिकॉज हम ज्यादा खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए एसिडिक, एंड एसिडिक लीड्स टू वन थिंग ऑफ द अनदर। ओके, तो टुडे एक लिस्ट बना के जो जो मुझे पता है ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेसेस वेयर पीपल हैव गॉन। सो आई हैव ट्राइड जिंदल ऑल्सो, जिंदल इज ऑल्सो वेरी नाइस, वो थोड़ा सा हायर रेंज में है। नाउ इवन निर्वाणा जो मैं बता रही हूँ वो भी थोड़ा ओके रेंज है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट ओके। सो आई विल शेयर द प्राइस दैट आई हैव पेड, so that you can decide which आपको comfortable लग रहा है, and you can check that out। okay, and I'll share the number also। अगर आपको वहां पे जाना है, try out करना है, you can go for a week, 10 days or 15 days। so that is entirely your choice। okay, so now going towards आज का हमारा practice, वही हम पहले हम अपने हाथ से अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को पूरी तरह से ओपन करेंगे। अभी ये जो मैं प्रैक्टिसेस आपको सिखा रही हूँ ये नेचुरोपैथी में नहीं सिखाने वाले हैं वो, दिस इज द अदर डिफरेंट लर्निंग मॉड्यूल्स व्हिच आई हैव डन इन माय लाइफ, वायर दैट आई एम टीचिंग। ओके, सो सबसे पहले हम वी विल स्टार्ट विद द हस्त पंच नवा शुद्धि। ओके, वी विल रिलीज all the happy hormones in our body। okay, so we will start। just relax, relax and relax। just relax your body, completely relax, and close your eyes when you're doing this। so we will start again। just relax, relax and relax, completely relax, relax and let your body loose। पूरी तरह बॉडी को रिलैक्स करते हुए वापस से थर्ड लास्ट टाइम। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए और ढीला छोड़ते हुए। ओके, अभी आज आई विल टीच यू वन ऑफ द प्रैक्टिस विच इज अ तांत्रिक प्रैक्टिस। तो बीज मंत्र वी विल डू टुमारो, बिकॉज टुमारो विल टॉक ओनली अबाउट बीज मंत्रस। ओके, so now today we will do one tantric type of meditation जहाँ पे हमें निकालना है। so now as I said, बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें हमने होल्ड 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 करी है। तो जब आप इसको नॉर्मल तरीके से निकालते हो, जैसे आपने रेकी से निकाला ऐसे, आपने प्राणिक से ऐसे निकाला है ना, और हमने अलग अलग तरीके से सीखा। बट नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप निकालने की कोशिश करोगे ओवर द टाइम क्लीनिंग करोगे,
वो नॉर्मली इस इतने सिंपल प्रोसेसेस में नहीं निकलते. ओके, तो उसको हमें पुश करना है. ओके, सो अभी हम सबसे पहले हमारा रोटेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, और रोटेशन ऑफ एनर्जी के बाद में हाउ इन तंत्र, हाउ डू वी टेक आउट दिस हैवी एनर्जीज, आई विल टीच यू. ओके, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आपको वो करना है, और जिसको अगर लग रहा है वो प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है, तो हम उसके अलावा उसके बदले हम दूसरा वाला प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद द रोटेशन ऑफ द एनर्जी, यू हैव टू क्लोज योर आईज. अपने आईज क्लोज कर लो. स्क्वीज योर लेग्स. अपनी एनर्जी को रोटेट करने के लिए जस्ट स्क्वीज योर लेग्स. स्क्वीज, स्क्वीज, मोर स्क्वीज, स्क्वीज इट एंड लीव इट. रिलैक्स, relax and relax. Now squeeze your hands, squeeze it, squeeze, squeeze, बहुत squeeze and relax. पूरी तरह से relax करते हुए छोड़ते हुए. Now squeeze your chest, squeeze, squeeze and squeeze it and relax. पूरा ढीला छोड़ते हुए just relax. Now squeeze your abdomen area, squeeze, squeeze and squeeze and relax. पूरी तरह छोड़ दो, पूरी तरह relax. Now squeeze your face, squeeze, squeeze and relax. पूरे body को relax, face को relax, relax and relax. Now squeeze your entire body. Squeeze, squeeze, fully squeeze and relax. पूरी तरह बॉडी को ढीला छोड़ते हुए बहुत ही रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स. अभी आप अपने आईज खोल सकते हो, और अभी हम नेगेटिव एनर्जी को निकालने की कोशिश करें. ओके, so in the tantra way they say कि normally एनर्जी नहीं निकलने वाली, आप कितना भी कोशिश कर लो, तो आपको उसको पुश करना है. तो पुश कैसे करना है? आपको माउथ को ओपन करना है और टंग आपको बाहर निकालना है. ओके, और आपको माउथ से अपना अवेयरनेस ऑन योर रूट चक्र और पूरी तरह पुश करना है. ओके, आई विल डू इट एंड लाइक यू, हम सब फनी लगने वाले हैं, बट ठीक है, इट इज ओके, वी आर रिलीजिंग इट. ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी आपको रूट चक्र पे बोल रही हूँ, आई विल ओपन माई माउथ, आई विल पुट माई टंग आउट, एंड मेरा अवेयरनेस इज ऑन माई रूट चक्र. मेरा ध्यान मेरे रूट चक्र पे है, एंड रूट चक्र में एनी इम्बैलेंस दैट इज देयर इन माई रूट चक्र, इन माई एनर्जेटिक बॉडी, मैं पूरी तरह निकाल के फेंकना चाहती हूँ. इनफ हो गया, बहुत हो गया, मतलब आई जस्ट वांट टू थ्रो इट आउट. सो दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. ओके, सो मैंने इनहेल किया, so I am throwing it for my root chakra. Thangam is laughing, but that is the way it is supposed to be done. क्योंकि आप पुश नहीं दोगे तो वो नहीं निकलने वाला है, और जब आप वो पुश करोगे तो वो आपकी एनर्जेटिक बॉडी से पूरी तरह बाहर जा रहा है. आपका ब्रेथ के एक्सेलेशन से वो हेल्प कर रहा है. सो वी विल डू टुडे 3 टाइम्स ऑन ईच चक्र को फोकस करते हुए, and then we will do it. Okay, so just do it only 3 times. हाथ को नॉर्मल रखना है अपने नीज पे, और हम 3 टाइम करेंगे. डोंट जज योरसेल्फ, हम खाली अपने थ्रो आउट कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिमूविंग इट. ओके, तो सबसे पहले फोकस ऑन योर रूट चक्र. तो जब आप फोर्स करके पुश कर रहे हो, तो आपको ऐसे पुश करना है कि आपको फ्रंट एंड द बैक साइड ऑफ योर चक्र, दोनों तरफ से वो जो नेगेटिव एनर्जी है या स्टक एनर्जी है, वो दोनों तरफ से बाहर निकल, दोनों तरफ से बाहर निकल. ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स अवर सैक्रल चक्र. इनहेल, अवेयरनेस ऑन योर सैक्रल चक्र, और हम पुश करके
any stagnant of creativity or the energy or the flow that is stopped in our body, हम उसको push कर रहे हैं, okay? Sacral chakra. Now, solar plexus. If we feel inferiority complex, not confidence, we are removing from the solar plexus. Awareness on solar plexus. So, हमने solar plexus. Now, awareness on your throat chakra, heart chakra. Heart chakra में any pain, hurt, guilt, हमने जो अटकाया है पूरी तरह हम हार्ट से निकाल रहे हैं. तो अवेयरनेस ऑन योर हार्ट, दोनों तरफ से पुश करते हुए वो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है. नाउ अवेयरनेस ऑन योर थ्रोट चक्र. थ्रोट चक्र में से एनी एनर्जी विच यू वांटेड टू से द वर्ड्स, वो सारी हैवीनेस जो हमने अपने एनर्जेटिक बॉडी में यहाँ रखा है, हम उसको निकाल रहे. Now throat chakra. Now we come on the third eye. Third eye में any confusion, any mental fogginess, any tension, everything we are removing from the third eye. तो third eye से निकालते हुए with the push. Now third eye. Now the crown chakra. Crown chakra, if you are not connected with the divine, so we are removing it. Now you can close your eyes. हमारी पूरी negative energy is removed from our body, and we will do the now filling in of the cosmic energy. So close your eyes and I will keep on saying and आपको follow करते जाओ. So inhale, sit comfortably, close your eyes and inhale nice deeply. Inhale nice deeply. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Visualize from the crown of your head. You're inhaling and a beautiful golden light from your crown chakra on the top of your head. You're inhaling this beautiful golden light. It is flowing from your head to your neck and the backbone of your body. This pure golden light is radiating and shining on your entire backbone. Inhale bright, beautiful red color in your root chakra. Feel this color is getting brighter and brighter. It is radiating very bright, very vibrant. This vibrant red color is becoming bigger and bigger. It is connected to the Mother Earth. In each and every bones, this Mother Earth's energy, the red color, you are able to feel it deep inside. Feel this red color getting bigger and bigger. Your root chakra, to your sacral, to your solar, your entire body is getting filled in this red color. Your upper body, your head,
Your legs entirely filled in this red color. Now bring awareness on your sacral chakra, bright orange color. Orange color is becoming brighter and brighter, bigger and bigger. Feel this color, bright orange, like an orange, bright orange. Your entire body is filled in orange color. Your upper body, chest, head, legs, your entire body, all the liquids in your body, all the blood, everything is filled in this bright orange color. Now, bring your awareness on your solar plexus. Inhale this bright yellow color. Your bright yellow color is becoming brighter and brighter, more radiant. It is bright like the sun, glowing like the sun. It is radiating in your chest, in your upper body and lower body. Your entire body is filled with this beautiful yellow color. Now visualize your heart chakra. Your heart chakra is filled with green color, green like the nature. Feel this color in your being. This color is becoming brighter and brighter. Your entire body is healed. Your chest is green, face fully in green color, your legs in green color, lower body fully in green color. Now you're connected with the nature. Now visualize your throat chakra. Your throat chakra color is sky blue. Feel this beautiful, vast sky color in your throat area. It is becoming bigger and bigger. Your head, your entire chest, your mid body, lower body, fully filled in the sky blue color. Now, inhale this beautiful dark blue color in your third eye. It is filled in this dark blue color. Feel that color becoming brighter and brighter. Your entire face, neck, upper chest, lower body filled in this bright navy blue color. Lower body, full body filled in this bright color. Now take your awareness on the top of your head. Inhale this bright purple color. This bright purple color is filled and becoming brighter and brighter. Aapka crown chakra is filled and connection with the divinity. Your entire face, neck, chest, lower body filled in this violet color, purple color. You are exhaling this rainbow color from your body. You're inhaling this bright rainbow color.
Inhale deeply this rainbow color and exhale all the rainbow colors. Inhale bright rainbow colors and exhale bright rainbow colors. Visualize your entire body is filled with the rainbow colors, and there is a bright, bigger ball around your body which is radiating in the rainbow color. The entire rainbow is in and around your body. You're inhaling and exhaling, giving gratitude to all your ancestors, giving gratitude to all gurus, giving gratitude to entire universe, giving gratitude to all the gods. You are grateful from your heart. Now become aware of the place you are, and you can now rub your hand and come out of this meditation and keep it on your eyes. Keep your hand on your eyes. So we have finished the entire fourth day process. So anybody wants to ask or tell, then आप please unmute करके बता सकते हो. और आपको खुद after the 4 days, energetically, what difference are you able to see? Like, are you able to see a difference, a lightness? आपको, and you want to share or you want to ask, please you can do that. Okay, anybody wants to ask? Okay, ठीक है. If nobody wants to ask या tell, then okay, okay, चलो. So ठीक है. Thank you everybody. So today was the 4th day. Now tomorrow, ma'am in between was getting lost in my thoughts. So thoughts gradually over the time वो कम होगा. जैसे मैंने बताया ना 5 कोशा. So we are somewhere, we are operating in a kosha where thoughts are circulating. So gradually over the time, those thoughts will come down. It will happen over the time. So that is why Om chanting helps amazingly. But ठीक है, हम चक्रास के वाया भी हम वो no thought stage पे try करें. Okay. So thank you everybody. Have a nice blessed day and thanks. Yeah, bye.